Once again, welcomed in Zahra's classes. Today I am here with English Flamingo Class 12 with the poem My Mother at 66. And here the poem is written by Kamla Das, and today I am going to explain this poem. Hello students, this is Dr. A. Zahra. Once again, welcomed in Zahra's classes. Let's go with the poem. So students, here in this poetry, My Mother at 66, we are going to study about the poet. We are going to read the poem, as well as I am going to explain the poem line by line, and again explanation of literary device will be there. So coming on to the very first part, that is about the poet. So here the poem is written by famous poet Kamla Das, and she was born in Thrissur, Malabar coast, which is in Kerala now, in British India. She was an Indian English poet, as well as a leading Malayalam author from Kerala, India. Okay, she was a poet, English poet, and she used to write Malayalam stories in Malayalam as well as in English. Again, popularly she used to write her things, poem or any story by a pen name, that is Madhavi Kutti, and her married name was Kamla Das. Again, she was also widely read columnist. She used to write columns and wrote on diverse topics of women. Okay, she wrote on diverse topics including women's issue, child care, politics, among others. Okay, so she basically focused on topics like women issues and child care. ज़्यादातर women issues के topics पे वो लिखती थी, columns लिखती थी, child care पे लिखती थी और बहुत कुछ politics पे भी लिखती थी. Again, she was an Indian author who openly and frankly wrote about female sexual desires too, and experience of being an Indian woman. Okay, again, she was a recipient of various awards. To name some, here I have mentioned Pan Asian Poetry Prize, Kerala Sahitya Academy Award, Kendra Sahitya Academy Award for her English poems, that is collected poems, Kerala State Filmfare Award for Best Story, as well as Violet Award, and there are many others too. Then her famous work, as you can see, is in categories of novels. She wrote Alphabet of Lust. For short stories, she wrote a doll for the child, Prostitute, Padmavati, The Harlot, and other stories. In poetry sections, she wrote collected poems, My Mother at 66, Ya Allah. So these were these are the few works that I have mentioned here. There are many more works she had done. And in 1999, she controversially got converted to religion Islam, and there she renamed herself as Kamla Suraya. So I hope so the poet description is sufficient, and let's move on to the poem. Here the poem is about the life or the poem is about mother of the poet. Okay, where she defines her mother, the old age of her mother. इस पोएम में पोएट ने अपनी माँ को डिस्क्राइब किया है, उनकी एज को लेके चिंता जाहिर की है, और बहुत खूबसूरती से, बहुत ब्यूटीफुली इस पोएम में उन्होंने ह्यूमन बॉन्डिंग की एक बहुत फाइन एग्जाम्पल रखा. ह्यूमन बॉन्डिंग का, एक मदर डॉटर की बॉन्डिंग का एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुली एग्जाम्पल सेट किया है. ओके, और यहाँ पे जो बेटी है उसके माँ के लिए जो फिक्र है, जो पेन है, ढलती उम्र का जो माँ के ऊपर दिख रहा है असर, उसको देख के जो बच्ची, जो बेटी, उसकी फियर है या पेन है कि वो मुझसे दूर हो जाएंगी, वो एक दिन चली जाएंगी दुनिया से, इस फियर और पेन को उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है. ओके, और ये एक हार्श रियलिटी है. मतलब हर एक को अब दुनिया में अपने मदर से, फादर से ओल्ड एज में देखना ये होता है कि वो छूट जाते हैं. तो ये एक बहुत हार्श रियलिटी है, और इस रियलिटी, जो हार्श रियलिटी है वो है लाइफ की, वो है डेथ. और इस चीज़ को, रियलिटी को इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. ओके, और इस पोएम में माय मदर एट 66
इन्होंने एक कंडीशन बताई है, पोएट ने एक कंडीशन को डिस्क्राइब किया है जिसमें ये अपनी मदर को छोड़ के वो अब जा रही हैं अपनी जगह पे, और एयरपोर्ट के रास्ते में उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और माँ के चेहरे पे देख के जो उनके अंदर फीलिंग आई, जो पेन महसूस हुआ, उस पेन को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी मदर की ढलती उम्र को देखकर। ओके, सो नाउ लेट अस रीड द पोएम and we will discuss entire paragraph line by line. Okay, my mother at 66, driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. beside me का मतलब alongside, मेरे बगल में। तो यहाँ पे the poem name is my mother at 66, और यहाँ पे पोएटेस जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि एक बार वो अपने पेरेंट्स के घर विज़िट करी थी, और उस विज़िट के बाद वो अपने पेरेंट्स का जो घर कोचिन में है वहाँ से वो जा रही थी, और जिस दिन वो वापस हो रही थी वो फ्राइडे का दिन था, और वो एयरपोर्ट की तरफ वापस हो रही थी, ड्राइव कर रही थी ताकि वो अपने जगह जा सके मदर के यहाँ से। और अपनी मदर को देखा उन्होंने, उनकी बगल में बिसाइड हर मदर वॉज सिटिंग, कार के पीछे वाली सीट पे दोनों पोएटेस और उनकी मदर बैठी हुई हैं। और पोएटेस ने इसमें बताया कि वो कोचीन से फ्राइडे के दिन निकली और अपनी मदर के साथ वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कार में। ओके, तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाया है इस लाइन में, इन लाइंस में, कि मदर को पोएटेस कोचीन आई हैं, पेरेंट्स के साथ रही हैं, और मदर के साथ वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रही है जहाँ उनकी मदर उनको ड्रॉप करने जा रही हैं। ओके, अब इन्होंने क्या देखा इस ड्राइविंग के दौरान? शी सॉ डोज ओपन माउथड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो यहाँ पर इन्होंने बताया, अब ये इसका मतलब देखिए, जो वर्ड्स यहाँ पर है, डोज का मतलब एक झपकी लेना, जो एक नैप आता है, हल्की सी जो थकान के बाद जो नींद आती है, हल्की सी झपकी हो रही है। तो मदर इनकी क्या हो रही है, वो कार में उन्होंने देखा कि मदर डोज हो रही है, शी इज़ डोजिंग, एक छोटा सा नैप लिया हुआ। और कैसे उस समय क्या उनका चेहरे पे क्या था, मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथेड था, और जो फेस था एशन, एशन यानी जैसे राख होती है, ऐश यानी राख, तो फेस जो था वो राख की तरह बिल्कुल एकदम मटमैला सा, एकदम पेल कलर का हो गया था, जैसे कि एक कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स यानी डेड बॉडी, जैसे एक डेड बॉडी होती है, पेल होती है, लाइफलेस होती है, जिसकी रंगत खत्म हो जाती है। तो हियर व्हाट पोएटेस वांट्स टू से दैट शी सॉ दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, माँ सो रही है, उस माँ का मुंह खुला हुआ है। She further explains that the color of mother's face was like that of ash, जैसे बहुत स्मोकी सा, डल सा कलर आ गया है मदर के चेहरे पे, और बिल्कुल उसकी मदर जो थी पोएटेस की, वो एकदम डल डेड बॉडी की तरह चेहरा दिख रहा था उनका। सो आई होप सो दिस पॉइंट, these lines are clear. Now next thing we will see the next line. Then what happened? Looked at young. So what happened? She realized, ये पेन उन्होंने रियलाइज किया, माँ के चेहरे पे देखा, और उसके बाद उन्होंने ये देखा that she looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये विचार उनके दिमाग में आया, मदर की तरफ उन्होंने देखा, पिछली लाइंस में आपने देखा कि उनको ये रियलाइज हुआ क्योंकि मदर डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा दिख रहा है, तो ये विचार से वो पेन उनको हुआ और वो पोएटेस जो घबरा गई। ठीक है, और घबराने के बाद उन्होंने उसकी अपने विचारों को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो बाहर देखने लगी कार से। तो कार से बाहर उनको एक दूसरी दुनिया दिखी। क्या दिखी? ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो पेड़ बहुत तेज़ी से एक मूवमेंट हो रहा है, पेड़ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं गाड़ी में। वो बाहर देखती हैं तो उनको पेड़ों का पूरा झुंड दिखता है, और कुछ बच्चे जो हैं वो
मेरी चिल्ड्रन, मेरी यानी बहुत खुशी से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। स्पिलिंग मीन्स लेट आउट, बाहर निकल के वो कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ देखे उन्होंने जो कि खुशी का सिंबल था। मैरी चिल्ड्रन, खुश खुश बच्चे, खुश मिजाज बच्चे जो अपने घर से बाहर निकले हुए थे खेलने के लिए। और वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल उस जो एक इमोशन था जो कार के अंदर माँ को देख के था, उसका उल्टा इमोशन उन्होंने बाहर देखा जो सिंबलाइज कर रहा था खुशी को, हैप्पीनेस को। ठीक है। और ये खुशी वो इस इमोशन को चेंज करने के लिए उन्होंने गाड़ी से बाहर पोएटेस ने देखा, और उससे उनके जो भावनाएं थी, जो विचार थे, वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा चेंज होते हैं। और पोएटेस जब ये रियलाइज़ करती है कि मदर ओल्ड हो गई है, तो उसके दिल में वो पेन आता है, और उस पेन से बचने के लिए, उन विचारों से बचने के लिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती है और बाहर की तरफ देखती हैं। बाहर यंग ट्रीज दिखते हैं, और यंग ट्रीज हैं वो तो एक जगह खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं, खुशी से भाग रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं अपने घरों से बाहर प्लेग्राउंड पे। तो ये सारी चीज़ें उनमें क्या एक नया इमोशन लेकर आया, एक लाइफ फुल ऑफ एनर्जी दिख रही थी उनको। तो ये कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट था, एक कॉन्ट्ररी इमोशन था जो उन्होंने अपनी मदर को देख के उनके दिमाग में आया था। ठीक है। बट here you will see that after the airport security check standing a few yards away। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं, एयरपोर्ट में चेक इन होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, तो माँ दूर से खड़े होकर उनको देख रही होती हैं, और पोएटेस भी अपनी माँ को एयरपोर्ट के अंदर से देखती हैं। तो फिर से देखती हैं तो उनको क्या दिखता है, जब पोएटेस एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, उसने देखा कि उसकी मदर का फेस जो है वो बुढ़ापे की तरफ आ गया है, एजिंग फेस हो गया है, बहुत डल लग रही हैं। बिल्कुल कैसी डल लग रही हैं वो, डल कैसी लग रही हैं वो, बिल्कुल ऐसी डल लग रही हैं जैसे कि एक विंटर मून। विंटर के समय में मून कैसा होता है, बिल्कुल छुपा हुआ, दबा हुआ, जिसकी कोई उस मून की कोई भी फ्रेशनेस या कोई भी उसमें अट्रैक्शन नहीं दिखता है। तो बिल्कुल मदर के चेहरे पे भी उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और उससे पोएटेस के दिल में एक आता है, एक दर्द महसूस होता है, वही दर्द जो वो बचपन में कभी महसूस करती थी चाइल्डहुड के समय, कि मेरी माँ मुझसे छूट जाएगी। ठीक है। वो चाइल्डहुड का दर्द फिर से उनके दिलो दिमाग पे आ जाता है अपनी माँ को देख के। यहाँ पे वर्ड्स जो हैं, द वर्ड्स वैन मीन्स डिम एंड पेल मीन्स डल कलर। तो ये दिया हुआ है मदर के चेहरे को देखकर उन्होंने एक उसको कंपेयर किया है डल मून की से। और ये डल मून क्या होता है, विंटर के समय में मून का जो एक करिश्मा होता है, एक मून का जो चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसी मून की तरह उनकी मदर का भी चेहरा लगता है, और उससे एक दर्द इनके दिल में आता है, और वो दर्द जो है इनको परेशान कर देता है, और पोएटेस को एक बचपन का दर्द उभर आता है कि मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट लास्ट लाइन में, कि बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी भावनाएं उनके अंदर जो है आती हैं, और फिर उसके बाद वो फिर भी अंदर जाती है, मदर का फेस देखती है, और अपना सारा यूथ अपनी मदर का देखती है कि मदर के चेहरे की शाइन, यूथ ख़त्म हो जाती है, और उसकी मदर ओल्डर और वीक हो रही है। फिर भी ये सारी भावनाओं के साथ वो अपनी मदर से सेपरेट होती है, और इस सेपरेशन के साथ वो कुछ नहीं बोलती हैं अपनी मदर से, बस अपने चेहरे का वो दर्द छुपाती हैं पोएटेस अपनी मदर से, और सिर्फ ये उम्मीद करती हैं कि अगली बार मैं फिर आऊँ तो अपनी माँ को देखूँ। और फिर ये भावना के साथ वो अपनी मदर को गुड बाय करती हैं, और कहती हैं कि मैं फिर से आपको देखूंगी, और सिर्फ वो मुस्कुराती हैं, और मुस्कुरा के वो अंदर चली जाती हैं, सिर्फ इस विचार से कि वो अपनी माँ को अगली बार देखें और अपनी माँ को वो लूज ना कर सकें। सो हियर द पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ मदर डॉटर रिलेशनशिप एज वेल एज द ह्यूमन एजिंग, जिससे कोई नहीं बच सकता है। सो आई होप सो द पोएम इज़ क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द literary device that are discussed in this poem। तो पहले आई विल एक्सप्लेन कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं।
राइमिंग स्कीम आपने देखा इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसमें कहीं से भी कोई भी वर्ड्स या पैराग्राफ लाइन के एंड में कोई भी वर्ड्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये एक फ्री वर्ड्स है, इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स, आराम बिल्कुल खुले विचार इसमें दिए हुए, कोई राइम्स क्रिएट नहीं हुए इसमें। दूसरा जो इसमें यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस दैट इज एजोनेंस। एजोनेंस क्या है? टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम वॉवेल साउंड। इसमें वॉवेल साउंड्स बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और उनका साउंड जो जैसे ओ है तो ओ कई जगह ओ मतलब लॉन्ग ओ साउंड है, कई जगह शॉर्ट ओ साउंड है, तो एक जैसे साउंड्स अपीयर हुए हैं। तो कॉन्सोनेंट भले ही डिफरेंट साउंड्स के हों लेकिन इसमें वॉवेल साउंड्स एक जैसे यूज हुए हैं, तो एजोनेंस भी इसमें आपको दिखेगा। सिमिली, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज सिमिली। सिमिली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच वेयर देयर इज सिमिलैरिटी शोन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो चीज़ों को लेके कंपेयर किया गया है, और इसको कैसे हम पता कर सकते हैं? जहां लाइक या वर्ड एज यूज होता है। इट ड्रॉज रिजेंबलेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक और एज। जैसे यहाँ मदर को फेडिंग मून से भी कंपेयर किया है, डेड बॉडी से भी कंपेयर किया है, तो यहाँ पे लाइक और एज यूज हुआ है, तो सिमिली भी यूज हुआ है यहाँ पे। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो एजोनेंस के बिल्कुल अपोजिट है, और यहाँ पे जो नेबरिंग वर्ड्स हैं सिमिलर और आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स जो हैं यहाँ पे यूज होते हैं, ज़्यादा यूज हुआ है उनका साउंड, और ये डिफरेंट तरीके से ये साउंड्स को यूज़ किया गया है, लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड या डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड बार बार यूज हुए हैं, वो कॉन्सोनेंस होता है। देन नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी इज अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ पे एक रीडर को ये बताई बहुत आराम से इसको इमेजिन कराया जाता है अपने लिटरेचर में, और एक सिंबल के फॉर्म में उसको इमेजिन कराया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है अपने काम को। जैसे कि इसमें सेंसेस यूज होते हैं, टेस्ट है, टच है, साइट है, स्मेल, साउंड, इनको लेके इमेजिन कराया जाता है किसी एक सिचुएशन को, ताकि वो अपनी चीज़ों को पोएट या ऑथर अच्छे से रख सकें। And last is repetition. There in this is that literary device where repetition of words or phrases or things are there, so that the idea is more clearer and memorable. तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा? राइम स्कीम है, एजोनेंस है, सिमिली है, कॉन्सोनेंस है, इमेजरी है, as well as repetition है. So now let us see how these are defined and in what way these things are defined here. Okay. So सबसे पहले हम जो पहला पैराग्राफ लेते हैं तो उसमें आप देखिएगा जो यूज हुआ, इसमें मैं स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हियर एजोनेंस यूज हुआ है पहले स्टैंजा में, जैसे हियर वी सी द यूज ऑफ वॉवेल साउंड ओ। तो यहाँ पे जो लाइन हुई है, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, तो टू कोचिन फ्राइडे के बाद मॉर्निंग, तो टू कोचिन मॉर्निंग, तो यहाँ पे किसका साउंड ज़्यादा रिपीट हुआ है? ओ वॉवेल का साउंड ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे पहले ही 3 लाइन में आपको दिखेगा जो लिटरली डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज एजोनेंस। देन अगेन इन नेक्स्ट लाइन्स व्हेन यू कम, यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन में डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, यहाँ पर भी आपको ओ यानी डोज में, ओपन में, माउथेड में ओ का साउंड ज़्यादा है, कॉप्स का ओ का साउंड ज़्यादा आ रहा है। देन ई का साउंड जो है हर, एशन, तो इसमें आपको ई का साउंड आ रहा है, ओपन ई का ई वॉवेल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगेन फेस, देन दैट, तो ये सारी चीज़ों में ए वॉवेल का साउंड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इन लाइन्स में भी दैट इज डोज ओपन माउथेड a face ashen like that of a corpse and realized with pain, तो इसमें आपको वॉवेल साउंड ओ ए का ज़्यादा उपयोग नजर आता है। तो अगेन हियर ऑल्सो इन दिस लाइन्स एजोनेंस इज देयर। अगेन इन्हीं लाइन्स में आप देखेंगे सिमिली भी है, जहाँ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। अब जैसे देखिए यहाँ पे लाइक दिया हुआ है, लाइक का मतलब आपको मैंने बताया था, सिमिली जहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आप कंपेयर करते हैं, तो मदर के फेस को कंपेयर किया गया किस? डेड बॉडी के साथ, कॉप्स के साथ, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज हुआ है लाइक है। सो हियर इन दीज लाइन्स सिमिली इज यूज्ड एज लिटरेरी डिवाइस। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट लाइन्स, दैट ये जो लाइन्स है अगेन वी विल सी इन नेक्स्ट पैराग्राफ कि यहाँ पे एजोनेंस के नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी
looked but soon put that thought away and looked at young trees splitting the merry children spilling out of their homes. तो यहाँ पे जो लिटरली डिवाइस यूज हुआ है वो है आपके कॉन्सोनेंस, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंस यूज हुआ है जहाँ पे साउंड हुआ है एस और टी, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे ज़्यादा दिखा है, जैसे दैट was old as she looked but soon put that thought away and looked out at young trees. तो यहाँ पे टी साउंड या फिर स्प्रिंटिंग स्पिलिंग शी, तो यहाँ पे एस और टी का साउंड ज़्यादा यूज हुआ इन लाइंस में, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच या जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज कॉन्सोनेंस. देन अगेन इन दीज लाइन्स पोएट ने क्या किया है, ट्रीज स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन, इनको इमेजिन कराया, हमको इमेजिनेशन में लेकर आया, हमें साइट दिखाई है उस चीज़ की, तो साइट के थ्रू हमें इमेजिन कराया, हमें पेड़ों के मूवमेंट, झुरमुट या खुश चिल्ड्रन, खुश मिजाज बच्चे, स्पिलिंग, तो ये सारी चीज़ें जो इससे हमें एक इमेजिन कराया सिचुएशन को, और ये यहाँ पे ये जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज इमेजिनरी. रिपीटेशन इसमें आप देखिए दो लाइनें हैं, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, तो यहाँ पे वर्ड लुक्ड रिपीट है तो हियर रिपीटेशन हो गया. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन्स, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इन नेक्स्ट लाइन्स में बट एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे एयरपोर्ट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, और उसके बाद जो लाइन्स आती हैं कि विद दिस फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे वर्ड स्माइल का भी रिपीटेशन है, तो ये रिपीटेशन यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. और लास्ट में मदर का फेस एक और जगह कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून के साथ, तो बोथ आर डल एंड लाइफलेस, तो यहाँ पर एज वर्ड यूज हुआ है, तो जिससे क्लियर होता है कि ये सिमिली है. अगेन नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम. सो आई होप सो स्टूडेंट्स द लिटरेरी डिवाइस इज clear in you, and this is a very beautiful poem which depicts or which is successful in creating emotions or describing the emotions between daughter and mother, as well as the truth of death or aging. I hope so you have learnt many things. So thank you students, and if you have understood, if you have liked it, then share it and subscribe it, and yes, don't forget to click the bell icon so that you get my notifications as any new video is uploaded. Thank you.